chapter, motion in a straight line. As an introduction, we should know that everywhere around us we see the motion. चारों तरफ motion दिखता है अपने को. As we walk, we run, ride a bicycle, car is moving, blood flows in arteries, earth is rotating around the sun, as well as earth is revolving around the sun. And sun itself is in motion in a Milky Way. So everywhere we are seeing there is a motion. And physics tries to analyze that motion and its causes. So motion is what? If we say anything is moving, that means how can we define motion? Motion is a change in the position of an object with time. So motion of an object in a straight line is called the rectilinear motion. Different types of motion are there. To get an idea of different types of motion, we can see here. Say suppose a body is moving like this, okay, this and body is of point object. Body is a point object, then is this is called the linear motion. Okay, and it has one part as rectilinear motion. Rectilinear motion. And motion of the earth around the sun is elliptical motion. Okay, there are circular motion also. This is a circle. The body is moving in a circle, then it is called circular motion. And if a body is following the elliptical path in the orbits as planets move around the sun, that is elliptical motion. Okay, so motion of earth around its own axis is called the rotation. So we call the rotational motion of earth around its own axis. What is the time period? 24 hours. Okay, then revolution. Earth is also revolving around the sun. Okay, so Earth's revolution takes 365 days approximately. Is the time period. Okay, so motion are of different type, and apart from that, we can also uh, define two categories of motion. As suppose we say that the motion which is going from this point to this point, this is known as translation. Suppose a body is there and the body is having different insert this type of position and is moving in this direction, that means body in the translation. And if a body is moving that while going forward, it is tilting a little bit. It is tilting a little bit like this. So we see that the body is moving in this direction also. And if we see this point is moving like this. So the body is in rotation also. So this motion is a combination of the translation and rotation. So what type of this motion is there? Combination of translation and rotation. So different types of motion do we see in our daily life. And here we are concerned with the rectilinear motion, this chapter. So what is kinematics? बच्चों kinematics क्या है? In kinematics, we study ways to describe the motion without going into the causes of motion. यहाँ इसने causes of motion बोला है. Causes of motion क्या होता है बच्चों? Causes of motion होता है force. Force is the cause of motion. Until and unless you apply a force, the body will not move. It will be stationary. Okay. So when we study the cause of motion also,
then that branch of physics is called, along with the motion we study the cause of motion also, that branch of the physics is known as the dynamics. So there are two things, kinematics and dynamics. Okay, so in this chapter, position, path length and displacement. So what is the position? So at 10 o'clock your position is at your home, and that 10:30 your position is at office. So your home and your office are located at different points. So we can define in a straight line also, and we can define with the two-dimensional coordinate plane, xy plane, in the coordinate geometry you have studied. Okay, so in order to specify the position we need to use a reference point and a set of axes. अगर आपने घर से चलना चालू किया और ऑफिस की तरफ गए और ऑफिस से कहीं और चले गए, उसके बाद में वहां से लौट के फिर ऑफिस आए और ऑफिस से फिर वापस घर आए, तो अपनी डिफरेंट पोजीशंस कोई डिफरेंट टाइम्स पे, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट अपने को वो सारी पोजीशंस बतानी पड़ेंगी और एक्सेस भी चूज करनी पड़ेगी कि किस तरीके की एक्सेस में हम उसको दिखाएंगे मोशन को. ठीक है, तो इट इज कन्वीनियंट टू चूज ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट हो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई. ये तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाई है. अगर इसमें आपको किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है कि पॉइंट एक टाइम पे यहाँ पे है, फिर किसी और टाइम पे इस जगह पे आ गया है, तो पहले इसकी पोजीशन P है, बाद में उसकी पोजीशन Q हो गई है. तो P पॉइंट को लोकेट करने के लिए हाउ यू रीड दिस P पॉइंट ऑन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन. आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एंड यू रीड दिस एंड यू कॉल दिस x1. देन परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, इसको आप रीड करेंगे, इसको आप रीड करेंगे तो क्या पढ़ेंगे y1. And we say that this point P has coordinate x1 comma y1. So x1 comma y1 coordinate describes the position of the point P in the xy coordinate plane. Similarly Q point है, इसी तरह से Q point को हम रीड कर लेंगे, ये हुई x2, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 हुआ और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये हुआ y2. तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं x2 एंड y2. x1 y1 एंड x2 y2 आर डिफरेंट. ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट है, दोनों को हमने टू डायमेंशनल दिखा दिया. ऐसे ही हमारी थ्री डायमेंशन होती है. एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ये ब्लैक बोर्ड वाला दीवार है आपका सामने जहाँ ब्लैक बोर्ड लगा है, और ये आपके आप बैठे हुए हैं तो आपके बाजू में जो है नीचे लाइन है वो है, मतलब ये साइड वॉल है जिसमें डोर भी हो सकता है, ये फ्रंट वॉल है और ये फ्लोर है. ये हो गया आपका थ्री डायमेंशन. तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मिलती है, इसको उसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं ओरिजिन. दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओरिजिन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ठीक है, तो अगर ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन है, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में हम जो है किसी पॉइंट को स्टडी करेंगे. लेट अस टेक ए पॉइंट एंड वी विल ट्राई टू स्टडी इट्स कोऑर्डिनेट. देन वी विल राइट द कोऑर्डिनेट एज, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे पहले. ठीक है, एक्स, देन वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद जेड कोऑर्डिनेट लिखेंगे. तो इस तरीके से इसका पोजीशन बताया जाएगा. व्हाट वी आर टेलिंग, we are telling about the position of the point at a particular instant of time. तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा भी चूज करना है. ये तो टू डायमेंशन हो गए, इसको हम बोलते हैं 2D, इसको हम बोलते हैं 3D. और एक अगर हम एक ऐसा रेफरेंस लेने कि ओनली एक्स एक्सिस ले लें और इधर प्लस एक्स एक्सिस और इधर साइड में जो है माइनस एक्स एक्सिस ले लें और यहाँ पे ओरिजिन डिफाइन कर दें, तो ये वन डायमेंशन हो गया. वन डायमेंशन में मोशन हो रहा है, एक रोड पे स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है. तो देर आर वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन coordinate systems in which we locate the point. Okay, locate the point which is moving. Okay,
And the motion is relative actually. When you say that car is moving on a road and we are describing the car with respect to a frame of reference attached to you, आप जो है एक कार को देख रहे हैं रोड पे जा रही है और आप सड़क पे खड़े हुए हैं, रोड पे आप खड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे कि कार मूव कर रही है, लेकिन आप आपका रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया, रोड का, अटैच टू द रोड। लेकिन अगर आप कार में बैठे होते तो आपका रेफरेंस फ्रेम कार में होता और वो मूव कर रहा होता कार के साथ में। तो आपका रेफरेंस फ्रेम भी मूव कर रहा है, कार भी मूव कर रही है, तो आपको कार कैसे दिखती? आपको कार रुकी हुई दिखती, क्योंकि आप खुद ही कार में बैठे हैं, आप रोड को नहीं देख रहे हैं, आप कार को देख रहे हैं। सो सिटिंग इन द कार, कार सीम्स टू बी एट रेस्ट। ठीक है, सो पोजिशन ऑफ रेस्ट एंड पोजिशन ऑफ मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको बेटा। जैसे कि आप एक कमरे में एक चेयर पे बैठे हैं, तो आर यू स्टेशनरी? बाकी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भाई ये तो स्टेशनरी है। यस, ठीक है, ये टेबल यहाँ पे रखी हुई है, दिस टेबल इज स्टेशनरी। स्टूडेंट्स बोलेंगे यस सर, दिस टेबल इज स्टेशनरी। Then I will say the change your frame of reference, go outside the earth and sit in a spaceship, and from there you see this table from the from the telescope. You see that table, whether the table is moving. Oh yes sir, table is moving because earth is rotating. Earth is rotating and revolving also, therefore table seems to be moving if we are in a spaceship outside the earth. Okay, so motion or the rest, these are the two relative terms. Okay, now if we take rectilinear one dimensional reference frame like this and define different points on it, see position of the right of O is the reference position, 0 number has been given to it, then 40 meter, 80 meter, 120 meter, a scale has been made. There are other points Q, P and R are shown on that. This side minus are shown, minus 40, minus 80, minus 120 and minus 160. This side plus are shown. Okay, so position coordinates of point P and Q are, what is the position coordinates of P? This is 360 in the positive direction of this reference point. So plus 360 is the position. What is the position of Q? Position of Q is 240 plus 240. Okay. Now we will understand two very important terms, path length and displacement. What is path length and what is displacement? Let us see about the path length first. Now consider the motion of a car, which is plotted here. A car is moving like this. How the car? We choose x-axis. Okay. So how does it define? See, x इक्वल टू 0 था t इक्वल टू 0 पे जब घड़ी चालू की हमने। ठीक है, देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है क्या, एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हो गया और इसके साथ में हम घड़ी चालू कर देते हैं, क्लॉक। जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है या जहाँ से हमें ऑब्जर्व करना होता है मोशन, उस जगह पे हम घड़ी का टाइम का 0 बताएंगे, घड़ी स्टार्ट हुई वहाँ पे, क्लॉक स्टार्ट हुई। ठीक है, और जब हमारा ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाएगा तो हम क्लॉक बंद कर देंगे। ओके, सो हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये जो घड़ी है और ये जो कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम है कोई भी, वो दोनों मिला के फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो एट टी इक्वल टू 0 पे जो कार है एक्स इक्वल टू 0 पे है, फिगर 3.1 में। ये फिगर 3.1 आप अपनी बुक खोल लीजिए, बुक में देखते रहिए। ये देखिए, इसमें जो है हाँ, एक्स इक्वल टू 0 है पोजिशन टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, पी क्यू आर जो है डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे पोजिशन है जो मैंने अभी आपको दिखाए। दो केस आप कंसिडर कर सकते हैं। पहला केस, कार मूव फ्रॉम ओ टू पी। ओ टू पी जब कार मूव करती है, यहाँ से लेके यहाँ कार मूव करती है। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, कितना चली, 360। तो ये जो 360 यहाँ स्ट्रेट लाइन में चली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो प्लस 360 मीटर, ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय द कार। एक केस कंसीडर करो कि ओ से पी जाती है और पी से क्यू वापस आती है। सी इसमें फिगर में ओ से पी जाती है और पी से क्यू वापस आती है।
ठीक है, तो ओ से पी तो 360 हो गया, और पी से क्यू जो है कितना हो गया, यहाँ से गिन लीजिए आप, 360 माइनस 240। ठीक है, तो उनका एडिशन हो जाएगा, तो देखिए 120 आएगा वो, 360 में ये 120 ऐड करेंगे 480 मीटर हो गया। तो टोटल पाथ ट्रैवर्स्ड, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ट्रैवर्स्ड इज नोन एज द पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, मतलब कि उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरी क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, एक दूसरी क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन करते हैं, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन होता नहीं पहले पोजीशन कहाँ थी और बाद में कहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, मान लिया कि x1 एंड x2 ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, पॉइंट टाइम t1 एंड t2 पे। टाइम t1 पे x1 पोजीशन है और टाइम t2 पे x2 पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा x कितना होगा, डेल्टा t टाइम जो है t2 माइनस t1 टाइम होगा। टाइम कितना हुआ, डेल्टा t, t2 माइनस t1। इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा x, दैट इज गिवन बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर x2 x1 से बड़ा होता है तो डेल्टा x पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, और x2 x1 से छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जिन क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेक्टिलिनियर मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वन डायमेंशनल मोशन है। इसके लिए इसमें आगे और पीछे जाना हो सकता है, ओ के आगे प्लस, ओ के पीछे माइनस, ऐसा हम साइन कन्वेंशन दे देंगे तो वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लस एंड माइनस साइन से डिनोट कर देंगे इन दोनों क्वांटिटीज को। मान लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी, ओ ये है, पी ये है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, x2 माइनस x1, तो ये x2 360 हो गया, x1 हो गया 0, 360 माइनस 0 प्लस का 360 आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम पी टू क्यू कितना हुआ, पी टू क्यू, तो स्टार्टिंग पोजीशन पी है एंड फाइनल क्यू, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1, तो x2 है 240, यहाँ से काउंट कर रहे हैं, देखिए x2 कितना है 240, बाद वाली पोजीशन, और पहली वाली पोजीशन क्या है, ये है। ठीक है, ओ पी 360, तो 240 माइनस 360 मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव। कैसा हुआ डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव, पी टू क्यू बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, तो पी टू क्यू 240 माइनस 360 माइनस 120 आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर साइड, डायरेक्शन बता रहा है माइनस साइन। ठीक है, इस साइड की डायरेक्शन जो है माइनस साइन से रिप्रेजेंट होगी, और इस साइड में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो प्लस से रिप्रेजेंट होगा। ठीक, नाउ the magnitude of the displacement may or may not be equal to the path length traversed by an object. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और पाथ लेंथ का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा सा एग्जांपल देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मोशन ऑफ द कार ओ टू पी, पाथ लेंथ कितना हुआ 360, ओ से पी में पाथ लेंथ कितना था, ओ से पी 360 था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 360 हो गया, तो इस केस में क्या हुआ, ओ से पी तक के मोशन में हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट 360 और पाथ लेंथ भी 360 है, तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन जो है मोशन ऑफ द कार स्टडी करिए ओ से पी एंड बैक टू क्यू, ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, इसमें क्या हुआ, पाथ लेंथ कितना हुआ 360 हो गया ओ से पी, और बैक टू क्यू मतलब 120 और चल गया। ये देखो बैक टू क्यू यहाँ से यहाँ तक चल गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 120 है, 360 में से 240 माइनस करो 120 आया, तो 120 जो है और चल गया, 360 भी चल गया 120 और चल गया, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, पाथ लेंथ हो गया भैया।
बराबर है। तो प्लस का 360 एंड प्लस का 120, पाथ लेंथ हो गया 480 मीटर। ये बात समझ में आई। आप डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कहाँ है बच्चों, फाइनल पोजीशन है बॉडी इस जगह पे, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी बॉडी इस जगह पे थी, यहाँ से चली थी ना, यहाँ से P गई और P से Q आई। तो ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। ओके, तो फाइनल पोजीशन प्लस 240 है, इनिशियल पोजीशन 0 है, तो 240 माइनस 0, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ द पाथ लेंथ, या पाथ लेंथ का दूसरा नाम है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब एक्सटी ग्राफ। मोशन को हम एक्सटी ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक्सटी ग्राफ के बारे में क्या है कि टाइम यहाँ पे बताया जाएगा एक्स एक्सिस पे और एक्स इधर बताया जाएगा। तो आपको अगर एक चीज़ शो करनी है इसमें कि एक कार स्टैंडिंग स्टिल एट एक्स इक्वल टू 40, मतलब एक्स ओरिजिन से 40 मीटर पे कार खड़ी हुई है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए टेक एनी टाइम ऑफ, घड़ी घड़ी चालू है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड घड़ी आप देख रहे हैं, तो हर बार आप क्या दिखता है, एक्स पोजीशन 40 पे दिखती है। देखो तो यहाँ पे आप पॉइंट बनाना शुरू कर देंगे। पहला पॉइंट ये आया, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये आया, तीसरा ऑब्जर्वेशन ये आया, इनको मिलाएंगे तो ग्राफ बन गया। तो ये जो लाइन है एक्सटी ग्राफ में, अगर ये लाइन ऐसे पैरेलल होती है टाइम एक्सिस के, इट शोज दैट द बॉडी इज स्टेशनरी, रुकी हुई है बॉडी 40 मीटर पे, ओरिजिन से 40 मीटर पोजीशन पे गाड़ी रुकी हुई है, एक्सटी ग्राफ, ठीक है। If an object is moving along the straight line, covers equal distance in equal intervals of time, equal distances in equal intervals of time, ठीक है। जैसे 20 20 मीटर 10 सेकंड में चला, अगले 20 मीटर अगले 10 सेकंड में चला, अगले 20 मीटर अगले 10 सेकंड में चला, तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होगा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन होगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, हैविंग एनी स्लोप, दिस ग्राफ ऑन एक्स टी विल बी लाइक दिस, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया भाई ये, ठीक है। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था ये वाला ग्राफ। अब एक कार का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। वो कार जो है, कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टाइम टी इक्वल टू 0। पहला है, कहता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन ओ। तो भैया कार स्टार्ट हो गई यहाँ से ओरिजिन ओ से, देख रहे हो, टी इक्वल टू 0 पे घड़ी चालू कर दी। यहाँ पे कार जो है, इसका पोजिशन एक्स कितना बता रहा है, 0 बता रहा है। उसके बाद क्या कहता है, पिक्स अप स्पीड टिल 10 सेकेंड फ्रॉम द ओरिजिन एंड पिक्स अप स्पीड टिल टी इक्वल टू 10 सेकेंड। टी इक्वल टू 10 सेकेंड तक वो स्पीड पिक करता है, ठीक है। तो टी इक्वल टू 10 सेकेंड तक जो है, यहाँ तक ये देखो, इट इज़ पिकिंग द स्पीड, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आने लगा। इसको हम इधर पढ़ेंगे ना, यहाँ पे ये देखो ये देखो ये देखो, इसमें डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, कार इज मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ओ पे नहीं है, अब थोड़ी दूर है। तो टाइम के साथ वो चीज़, उसकी लोकेशन बदल रही है, इसका मतलब इट इज पिकिंग अप स्पीड, ठीक। उसके बाद 10 सेकंड के बाद क्या होता है, 10 सेकंड तक ये हुआ। उसके बाद क्या होता है, मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड टिल टी इक्वल टू 18 सेकंड। 18 सेकंड तक, मतलब यहाँ तक, ये वाला पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे स्पीड पिक कर लिया इसने बराबर। यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन, आर यू सीइंग, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ऊपर जो ग्राफ मैंने बताया यूनिफॉर्म मोशन का, तो वही वाला उसी टाइप का ग्राफ यहाँ पे आ गया है आपके सामने, राइट। फिर moves with uniform speed till t equal to 18 second, then the brakes are applied and the car stops at t equal to 20 second। t equal to 20 second पे कार रुक जाती है, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 296 पे कार रुकती है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 296 समथिंग यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कार रुक गई है। तो कार रुकने के बाद उसका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, देखिए, ठीक है।
और ये 20 सेकेंड पे जो है कार रुक गई है। तो 20 सेकेंड पे ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ गया है, तो आपको ये कार में वेरिएशन दिखाया गया है, ठीक है, डिफरेंट टाइप का, इसलिए एग्जांपल लिया गया है। तो भैया आज आपने ये समझ लिया कि वो है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बराबर। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी भी बतानी पड़ेगी, एवरेज स्पीड भी। एवरेज वेलोसिटी क्यों बतानी पड़ेगी? हाउ फास्ट इज द पोजीशन चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। आप कहेंगे ना कि मेरी बाइक इतनी उसकी स्पीड या वेलोसिटी इतनी थी, या दूसरे की बाइक की वेलोसिटी या स्पीड इतनी थी, ठीक है। तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि आप कितनी तेज गाड़ी चला रहे थे। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए एवरेज वेलोसिटी टर्म कॉइन किया गया है, ठीक है। तो चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल in which that displacement occurs is known as the average velocity. So average velocity v is equal to x2 minus x1, ये हो गया displacement over the time interval. So delta x upon delta t, this is the average velocity during two time intervals, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर और ये सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब जो है वो जो ऊपर जो कार का फिगर था, उसमें से इन्होंने जो है यहाँ से लेके 10 सेकंड तक का जो पोजीशन है, उसको इन्होंने मैग्नीफाई करके एक ग्राफ बनाया है दूसरा। ये देखिए, 0 से लेके 8 सेकंड तक का लिया है, उसका ग्राफ इन्होंने ले लिया है, ठीक है। तो ये P1 एंड P2 दो पॉइंट बताए ना इन्होंने, तो P1 एंड P2 मैंने यहाँ पे ये दिखाए, देखिए दिस इज P1 5 सेकंड पे, और 7 सेकंड पे P2 8 सेकंड तक का ग्राफ, इसको मैग्नीफाई किया हुआ है। और कहता है कि कंसीडर द मोशन ऑफ द कार इन फिगर 3.3, द पोर्शन इज t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 सेकंड तक का उसको ब्लोन अप किया, मतलब मैग्नीफाई किया है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू 7 के बीच में। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तो दो इंस्टेंट होगा t1 एंड t2, तो t2 माइनस t1 तो नीचे आ जाएगा, 7 माइनस 5, ठीक है। तो अब 7 और 5 पे पोजिशन क्या है वो ग्राफ में बताया है। तो ये देखो, ये 5 पे, ये 7 पे पोजिशन, 7 पे पोजिशन पढ़नी है तो अपने को इधर पढ़ा जाएगा, तो 27.4 है। और यहाँ पे देखिए 5 पे पोजिशन पढ़नी है तो ये पढ़ा जाएगा 27.4 माइनस 10, ये हो गया, ये वाला ये डिस्टेंस हो गया। और टाइम ये हो गया 2 सेकेंड, 7 माइनस 5 ये हो गया। ये बेसिकली है क्या? ये डिस्प्लेसमेंट P2Q अपॉन P1Q जो आया यहाँ पे फॉर्मूले में रखने के बाद, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी 8.7 मीटर पर सेकेंड आया। ज्योमेट्रिकली क्या चीज़ है? आप सीध देखिए, ज्योमेट्री देखिए, दिस अपॉन दिस इज ए स्ट्रेट लाइन P1 P2, स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो आप देखिए ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस क्या होता है? tan थीटा होता है ना। इफ दिस एंगल थीटा, देन दिस इज कॉल्ड tan थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप। इसको हम स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं एक्स एक्सेस के रेफरेंस में बोलूँ, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा है और ये वाली लाइन का स्लोप कम है, और ऐसी लाइन का स्लोप और भी कम है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है वही उसका tan थीटा ही स्लोप होता है। ये देखो स्लोप, डिफरेंट लाइन के हमने 3 स्लोप बताए हैं। इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसका स्लोप उससे कम है, इसका स्लोप इससे कम। समझ में आ गया स्लोप क्या होता है? एंड स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा, बराबर। तो आपको समझ में आ गया भैया कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जो है इसका भी साइन होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जो इसका साइन होगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसी के हिसाब से एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। इज इट क्लियर नाउ? Now this figure 3.5, it is showing you xt graph of object. In this graph, this is moving with the positive velocity. अगर इस तरह का स्लोप है तो ये ग्राफ बताता है कि
पॉजिटिव वेलोसिटी है बॉडी, और ग्राफ इस तरीके का है, मतलब ये देखो, एज द टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग दिस पोजिशन एक्स इज डिक्रीजिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब ब्रेक लगाया हुआ है, ऐसा समझो, ब्रेक लगा दिया तो वेलोसिटी कम होना चालू हो जाएगी। तो ये जो है पॉजिटिव वेलोसिटी होगी तो उसका ग्राफ एक्स टी ऐसा आएगा यूनिफॉर्म मोशन का, और यूनिफॉर्म मोशन है और नेगेटिव वेलोसिटी ग्राफ है तो ऐसा आएगा, और एट रेस्ट बॉडी है तो एक्स टी ग्राफ ऐसा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द पॉइंट is located at the same point. The object is located at the same position x, same position with respect to origin. ठीक है, तो ये आपने समझा कि एवरेज वेलोसिटी क्यों डिफाइन किया गया भैया। एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि बताना पड़ेगा आप कितनी तेजी से गाड़ी ले जा रहे थे, मान लो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो बाद में इंक्वायरी होगी कौन ज़्यादा तेज चला रहा था, बराबर है। तो एवरेज वेलोसिटी भी रिक्वायर्ड है दो टाइम इंटरवल्स के बीच में। तो एवरेज स्पीड भी डिफाइन करनी पड़ेगी। क्यों डिफाइन करनी पड़ेगी भाई, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल, उसको बोलेंगे हम एवरेज स्पीड। टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय द टोटल टाइम। टोटल पाथ लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ट्रेवर्स्ड इज टोटल पाथ लेंथ, इसका दूसरा नाम डिस्टेंस भी होता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो आएगी ये हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव हो नहीं सकती एवरेज स्पीड, बराबर। एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, ठीक है। तो क्या एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होंगी, किसी केस में ऐसा हो सकता है? हाँ जी, ऐसा हो सकता है। कैसे? इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग a straight line and in the same direction, the magnitude of the displacement is equal to the total path length. जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतना ही पाथ लेंथ हुआ है, टोटल पाथ लेंथ। जैसे ओ से पी के केस में 360 चला था दोनों, तो पाथ लेंथ भी सेम है एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम एंड टाइम भी सेम लगा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। ये बात समझ में आ गई? okay. इसका मतलब है कि इफ द रेक्टिलिनियर मोशन इज देयर at that time the displacement and the velocity both are same, ठीक है। इस एग्जांपल में इस बात को बताया, कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओपी इन फिगर 3.1 वही वाला फिगर है जो ऊपर हम लेके चले थे। ये देखो फिर से मैंने इसको यहाँ बना दिया है। ओ से पी जाता है 18 सेकंड, मतलब ओ से 360 पे जो पी है यहाँ 18 सेकंड में जाता है, ठीक है। और रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकंड, पी से क्यू 6 सेकंड में रिटर्न होता है, ये 6 सेकंड का टाइम दिया है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये दोनों चीज पूछी है। ए फ्रॉम ओ टू पी, तो पहले ओ टू पी देख लेते हैं। ओ टू पी में क्या है, ओ टू पी में ओ से पी गया तो क्या क्या देखना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड देखना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो 360 अपॉन टाइम, टाइम कितना 18 लगा। और एवरेज स्पीड क्या हुई, वो भी 360 अपॉन 18 हुआ, तो दोनों का वैल्यू सेम हो गया। सी 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ जो है दोनों सेम आ रहा है। अब दूसरा केस कहता है कि बी में देखिए ओ से पी और बैक टू क्यू, ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। ऑब्जेक्ट ये ग्रीन लाइन से मैंने दिखाया, ओ टू पी गया और पी से क्यू वापस आया। अब इसमें जो है अपने को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 360 और जो है ये 240 पे है यहाँ से, ठीक है। और ये हो गया 120, तो 360 माइनस 120, ठीक है। 240 हो गया ना, सीधा सीधा यहाँ स्केल पे पढ़ लो, 240 दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट 240 हो गया, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लगा, टाइम इसको लगा यहाँ से यहाँ तक 18 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगा, 18 और 6 24 सेकंड टोटल लगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब 240 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ हमारा, 240
डिवाइड बाय 24, 10 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आ गया, राइट। अब देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड के लिए पाथ लेंथ लेना होगा, डिवाइड बाय टाइम करना होगा। तो पाथ लेंथ आपका हो गया, यहाँ से यहाँ गया तो 360 चला, यहाँ से यहाँ गया तो कितना चला, 360 माइनस 240, 120 चला। तो 360 चला और 120 चला, दोनों को प्लस करिए, ठीक है। और टाइम तो उतना ही है, 24। तो देखिए ओपी 360 प्लस 120 डिवाइड बाई 24, तो ये आ गया 20। यहाँ पे देखिए कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड डिफर हो गई। ये पॉइंट आपको समझ में आया है? तो जब डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम हम लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड अलग अलग हो जाए, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल जो होता है, speed in general is greater than the magnitude of the velocity always, ठीक है। स्पीड जो है वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती है, स्पीड वेलोसिटी के बराबर तो हो सकती है, वो हमने देख लिया इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में। स्पीड जो है बराबर तो हो सकती है, इक्वल हो सकती है वेलोसिटी के, लेकिन स्पीड जो है वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, कम नहीं हो सकती, ठीक है। So with this point, we will finish our lecture today. And in the next lecture, we will be discussing the instantaneous velocities and speed. Okay, till then, goodbye.